Welcome students. Students, today we are going to discuss the structure of DNA. आप सबों को मालूम है कि DNA हमारी बॉडी का मास्टर मॉलिक्यूल है। ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, इसलिए क्योंकि DNA is the storehouse for genetic information. It is a storehouse for the biological information. हमारी बॉडी के अंदर, whether it is external features or the internal features, all these features, जो external features है, जो internal features है, जो हमारी बॉडी को एक रूप देती है, हमारी बॉडी का जो रंग है, हमारी बॉडी का जो रूप है, ये इसलिए है because of the presence of DNA, क्योंकि इस DNA के पास बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब ये DNA हमारे किसी खास ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर DNA प्रेजेंट होता है। Each and every cell of our body contains the equal amount of DNA. Now let us see what this DNA is. What is the structure of DNA? ये DNA कैसा होता है, कैसा लग रहा है ये DNA, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, तो let us try to understand these things. Okay? So DNA के स्ट्रक्चर को लेके हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट्स का नाम आता है। These scientists include the वाटसन है, वाटसन का नाम आता है। We have the Crick, फ्रांसिस क्रिक, विल्किन, मॉरिस विल्किन, इसी तरह से we have फ्रैंकलिन, रोज़ालैंड फ्रैंकलिन. All these have contributed in preparing the structure of DNA. The first two persons, that is Watson and Crick, they proposed the double helix model of DNA, and for that they got the Nobel Prize along with the Wilkin. These three, that is Watson and Crick, along with the Wilkin, they got the Nobel Prize in the 1962 in the field of physiology for making the model of the DNA, for making the double helix model of the DNA. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन तीनों को दिस नोबेल प्राइज मिल गया तो फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? इसलिए क्योंकि फ्रैंकलिन इस समय 1962 में फ्रैंकलिन की डेथ हुई थी। इसकी डेथ हुई थी at the age of 38. When she was only 38 years old, she faced the death. वो इस दुनिया से चल बसी। इसीलिए फ्रैंकलिन is not included in getting the Nobel Prize in the year 1962. So these three persons, they have got the Nobel Prize for preparing the double helix model of DNA. Now what are the features? जब जो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA प्रिपेयर किया, अब डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA, इस मॉडल के साइलेंट फीचर्स जो है, I am going to discuss the features of the double helix model of DNA. तो सबसे पहला फीचर जो है DNA के पास दो चेन्स है, दो स्ट्रैंड्स है। DNA has two strands, two chains. DNA has two chains or strands, and each chain is a polymer of each chain is a polymer of deoxyribonucleotides. It's a polymer of deoxyribonucleotides. Okay, I think polymer आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, मैं आप एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आपने इसको देख लिया है, इसको आपने देखा होगा, ये तस्बीह है। Okay, now what is this? It's a polymer. अब पॉलीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ऐसा माइक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, which is composed of this many मोनोमर्स, रिपीटेड मोनोमर्स, जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें जो बीड्स होते हैं, दिस इज वन मोनोमर, दिस इज अनदर मोनोमर, अनदर मोनोमर, अनदर मोनोमर. These monomers are they are connected.
they are connected with one another and they form a long chain, they form a long this structure which is called as the polymer. पॉलीमर आपके आपके घर में जो वॉल होता है उस वो वॉल क्या है वो भी एक पॉलीमर होता है और उसमें जो ब्रिक्स होते हैं दोज आर दीज मोनोमर्स और वो ब्रिक्स एक साथ मिलके दे फॉर्म द पॉलीमर दैट इज द वॉल. इसी तरह से दिस वी हैव सीन इन केस ऑफ प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स जो होते हैं एक साथ कनेक्ट होते हैं और एक साथ कनेक्ट करने से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स. सेम लाइकवाइज सेम बिल्कुल इसी तरह से डीएनए जो होता है डीएनए में भी पॉलीमर्स होते हैं. ये इस तरह से इस तस्बीह में मोनोमर्स होते हैं. दीज आर द मोनोमर्स व्हिच आर कनेक्टेड विद वन अनदर and they form the long chain and this long chain is a polymer. Same likewise in case of DNA the monomers, the units, repeated units, they are the deoxyribonucleotides. They are deoxyribonucleotides and these deoxyribonucleotides they are connected with one another and they form a polymer. They form a large molecule which is formed by the repeated deoxyribonucleotides. Okay, so I think you got it what this polymer is. अब ये polymer होता है दोनों चेन डीएनए के दोनों चेन जो है दोनों स्ट्रैंड जो है दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द deoxyribonucleotides. हर एक राइबोन्यूक्लियोटाइड deoxyribonucleotide उसके साथ दूसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होता है फिर तीसरा और दे आर कनेक्टेड विद वन एंड दे फॉर्म ए लॉन्ग पॉलीमर. नाउ we will see the structure of this deoxyribonucleotide or the nucleotide. अगर हमें पता चले कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है तो we will come to conclude the structure of the DNA. So the न्यूक्लियोटाइड क्योंकि DNA न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है और न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं deoxyribonucleotides. This nucleotide it has some components, 3 components. One is pentose sugar, another is the phosphoric acid or phosphate group, phosphate, and another is nitrogenous base. There are 3 components. One pentose sugar, ये शुगर है 5 कार्बन शुगर है. फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड का बना होता है. देन वी हैव द नाइट्रोजनस बेसिस. Now these pentose sugar, there are 2 types of pentose sugar. One is ribose and another is deoxyribose. This ribose is present in RNA. It is present in RNA and deoxyribose is present in DNA. Okay. Now ये पेंटोस शुगर जब नाइट्रोजनस बेसिस के साथ मिलते हैं पेंटोस शुगर जब नाइट्रोजनस बेसिस के साथ मिलते हैं तो दे फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड व्हेन द नाइट्रोजनस बेसिस दे कंबाइन विद द पेंटोस शुगर. सो पेंटोस शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेसिस बनते हैं दे फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड और फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर ये फॉस्फेट बनेगा इट फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड. ओके, तो हमारा यहाँ पर कुछ लेन देन नहीं, न्यूक्लियोसाइड के साथ हमारा वास्ता नहीं है, वो हमारा वास्ता यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स के साथ है. तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं जब पेंटोस शुगर के साथ अगर नाइट्रोजनस बेसिस कनेक्ट होंगी तो दे फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड एंड देन न्यूक्लियोसाइड के साथ व्हेन देयर इज अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप देन इट फॉर्म्स द न्यूक्लियोटाइड. चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके पेंटोस शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस को एक एक करके इन सबों को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट द पेंटोस शुगर. Pentose sugar, as the name indicates, it's a sugar. It's a 5 carbon sugar. It's a 5 carbon sugar. अब डीएनए में जो पेंटोस शुगर होता है, there are 2 types of sugar, pentose sugars. One is called as ribose and another is the deoxyribose. और ribose जो होता है that is present in the RNA and deoxyribose is present in the DNA. So deoxyribose. It is the pentose sugar which is present in the DNA.
ओके, अब इस चीज को डीऑक्सीराइबोस की स्ट्रक्चर को समझने के लिए वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोस। तो हम पहले राइबोस की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें आसानी होगी डीऑक्सीराइबोस की स्ट्रक्चर को समझने। तो चलिए देखते हैं कि राइबोस की स्ट्रक्चर क्या है। वी हैव राइबोस, ओके, so we have the carbon, यहाँ पर 1 2 3 4 and this is 5 carbon. This is structure of ribose. अब इस राइबोस में हम चलो गिनते हैं, काउंट करते हैं इसमें है कार्बन कितने हैं। सो दिस इज कार्बन नंबर 1 यहाँ से, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 3 4 and 5. तो यहाँ पर कार्बन 5 है, C5. ओके, चलिए आप गिनते हैं इसमें हाइड्रोजन कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. We have hydrogen 10. Okay, now oxygen गिनते हैं कितने। This is 1 2 3 4 and 5. So we have oxygen 5. So this C5H10 and O5, it is the ribose. It is ribose. Okay, now what deoxyribose is? अब इससे हम deoxyribose की स्ट्रक्चर को समझेंगे। Now deoxyribose, deoxyribose, अब इसका नाम है deoxy. D means absent, something missing, कुछ absent है, कुछ missing है। deoxy, अब क्या missing है? oxy, that is deoxy, oxygen missing है। okay, oxygen is absent. Deoxyribose, ribose में, that is deoxy, that is missing of oxygen, राइबोस इन द राइबोस, इन द राइबोस। राइबोस की स्ट्रक्चर ये है, राइबोस की स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन मिसिंग है। अब मसला है कहां पर मिसिंग है, तो वो है एट कार्बन नंबर 2। और कार्बन नंबर 2 पर जो ये ऑक्सीजन यहां पर है, कार्बन नंबर 2 पर, ये कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मिस है। तो यहां पर क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तब जाके ये स्ट्रक्चर इट विल बिकम द deoxyribose. That is why DNA stands for the deoxyribonucleic acid. Deoxyribose because इसका जो पेंटो शुगर है that is deoxyribose. और deoxyribose का मतलब क्या हो गया कि ये राइबोस की स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है एट द कार्बन नंबर 2. I think you are understanding things. ओके, अब इसमें यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। इसमें 1 2 3 4 and 5 वी हैव C5, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन अगेन वी हैव 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वी हैव हाइड्रोजन 10 एंड O चूंकि एक मिस हो गया O, तो यहाँ पर 5 O थे, ऑक्सीजन 5 थे, चूंकि एक मिस है, एक लॉस है, तो वी हैव O4. So this is the structure for chemical formula for the deoxyribose. So this is deoxyribose जो DNA में present होता है. I think you understand this and why DNA is called as DNA. Okay. Now we have the second, that is phosphoric acid या phosphate group. Phosphate group. Okay. Now this phosphate group, it is actually the H3PO4. It is H3PO4. It is H3PO4. H3PO4. चलिए सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसकी। दिस इज फॉस्फोरस, इसमें आपको पता है इसमें वैलेंसी 5 है। चलिए यहाँ से 2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो 2 वैलेंसी खत्म हो गई। अब यहाँ से 3 रह गई, दीज आर 3। यहाँ पर क्या, यहाँ पर OH OH and OH. So this is the this structure for the phosphate group या phosphoric acid. तो this is phosphoric acid. अब चूंकि physiological conditions में in the aqueous conditions में ये इस हाइड्रोजन को लॉस करता है। It is an acid
Okay, it will lose the this hydrogen, it will lose the proton. तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से प्रोटॉन को लॉस करेगा, और प्रोटॉन को लॉस करने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी। तो जब इसने अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या करता है, ये हाइड्रोजन को लॉस करता है एंड इट डेवलप्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हाइड्रोजन लॉस करना एसिड बन गया, दैट इज व्हाई इट इज एसिड। तो ये फास्फोरिक ग्रुप बन गया फ्रॉम द फास्फोरिक एसिड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फास्फोरिक ग्रुप एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीऑक्सीराइबोस। अब नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्कस द पेंटोस दिस नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, थैंक यू वेरी